السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کون صاحب بول رہے ہیں؟ حضرت میں یو پی سے بول رہا ہوں، ڈسٹرکٹ ہردوئی سے۔ ارے واہ، شیخ ابرار الحق صاحب ہردوئی کی طرف سے۔ جی 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 صاحب کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد انیس برکاتی۔ اچھا، حضرت مولانا امین ملت صاحب سے مرید ہیں آپ؟ جی 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 ماشاء اللہ، فرماؤ کیا حکم ہے صاحب؟ صاحب مجھے پتہ یہ کرنا تھا، میں اس پسوپیٹ میں پڑا ہوا ہوں۔ جی صاحب۔ آپ کے ویڈیو اس کے موبائل پہ دیکھ کے جی، میں اہل حدیث کو صحیح کہوں یا بریلویوں کو صحیح کہوں یا کہ دیوبندیوں کو صحیح کہوں، کسے صحیح کہوں؟ کس کی ویڈیو دیکھ کے؟ جب آپ کے بیان جس پہ آتے ہیں موبائل پہ، یوٹیوب پہ۔ ایسا مزاج بن گیا آپ کا؟ نہیں، میں پسوپیٹ میں پڑا ہوا ہوں، میرا مزاج کسی طرف نہیں جا رہا ہے۔ نہ اہل حدیث بنو، نہ دیوبندی بنو، نہ بریلوی بنو، نہ مودودی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وہ بنو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ۔ اللہ نے فرمایا نہ مرو تم مگر مسلمان بن کے مرو۔ بس جی، یہ تو فرقے بعد میں بن گئے۔ پھر یہ جو حدیثیں بیان کی جاتی ہیں 72 یا 73 فرقے والی، جی صاحب، پھر حدیث کا مطلب کیا ہے؟ وہ تو حدیث ہے، حضور کا فرمان ہے۔ میری فرمان ہے، پھر جو اگر یہ حدیث ہے، حضور کا فرمان ہے، پھر اس پہ ایمان لانا بھی تو مسلمانوں کا کام ہے۔ بالکل، حدیث یہ بھی ہے جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ کفر ایک نماز چھوڑنے میں، وہ کفر کر دے گا تو نکاح بھی ٹوٹ جائے گا اس کا۔ ایک بار کفر ہوا تو نکاح ٹوٹے گا کہ نہیں؟ اب رات دن مسلمان کفر کر رہا ہے، 5 ٹائم کی نماز چھوڑا۔ نہیں حضرت، یہ تعویل اپنی طرف کر رہے ہیں آپ۔ حدیث ہے، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ اس نے کفر کیا، لیکن اس کا یہ حکم نہیں آیا ہے کہ نماز چھوڑنے والا کافر ہو جائے گا، یہ کہیں نہیں آیا۔ یہ حدیث نہیں ہے، یہ اپنی طرف نہیں حضرت، اپنی طرف نہیں۔ بے شک اس نے کفر میں سب کی بات کو پسند کرتا ہوں، لیکن جو مطلب مسائل میں یا حدیث میں تبدیلی یا اس میں گھٹائے بڑھائے، اس کے خلاف۔ فرقوں والی حدیث کا یہ مطلب سمجھنا کہ دیوبندی جہنمی، ندوی جہنمی، عرب والے نہیں، یہ نہیں میری سمجھ میں آیا، یہ میری سمجھ میں بالکل نہیں آیا۔ تو آپ یہ بتائیں، میری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ وہ جہنمی فلانی، مطلب دیوبندی ایک کسی گاؤں میں دیوبندی ہے، دیوبندیوں کے گاؤں میں یا اس میں قصبے میں کچھ لوگ رہتے ہیں، اب وہ دیوبندی نہیں ہیں، پھر جو انہیں دیوبندیوں میں گن دیا جائے گا، وہ الگ بات ہے، وہ دیوبندی نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ تو کیا ہے، ایک مزاج بنا دیا گیا ہے کہ جو کھڑے ہو کر فجر بعد 5 منٹ سلام پڑھ لے تو مسلمان ہے، جو 5 منٹ سلام نہ پڑھے، 22 گھنٹے صلاۃ السلام پڑھے بیٹھ کے تو وہ کافر ہے۔ جو 22 گھنٹے بیٹھ کے سلام پڑھے یا اکیلے میں کھڑے ہو کے بھی پڑھے تو اسے کافر مانتے ہیں، اور جو 5 منٹ سلام پڑھ لے تو اسے مسلمان مانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے تو ایسی کوئی بات کہی نہیں ہے۔ تھوڑی بہت کتابیں میں بھی پڑھ لیتا ہوں، نہ عالم ہوں نہ حافظ ہوں، کچھ بھی نہیں، اردو جانتا ہوں صرف۔ لیکن ماشاءاللہ آپ روشن ضمیر ہو، آپ کی بات سے لگا کہ آپ روشن ضمیر۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی بات کہیں پہ نہیں لکھی ہے کہ جو سلام نہ پڑھے یا بیٹھ کے پڑھے یا کھڑے ہو کے پڑھے، یہ مسئلے ماشاءاللہ آپ سمجھدار ہو۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا بے شک اللہ اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، نبی پر خوب درود بھیجو، سلام بھیجو۔ اب یہ کیا کر رہے ہیں، 4 شعر پڑھنے کے بعد اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، و خنجر اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، ہمت اعلیٰ حضرت، یہ کیا ہو رہا تماشا؟ اللہ نے نبی پر صلاۃ و سلام بھیجنے کا ہے، تھوڑی کہا کہ نبی کے ساتھ میں اعلیٰ حضرت پہ بھی سلام بھیجو، حضرت ابوبکر پہ مت بھیجو، حضرت عمر پہ۔ یہ دیکھو، یہ سب ان لوگوں نے صحابہ کو بائی پاس کر دیا، اہل بیت کو بھی بائی پاس کر دیا، اور اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام ضروری کر دیا۔ نہیں حضرت، 5ویں پارے میں جو آیت کریمہ ہے اس میں مطلب صالحین، نبیین، متقین اور جو ان کے ساتھی ہیں سب پہ مطلب انعام اللہ کا نام کے معاملہ بتایا گیا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، اللہ کا انعام ہے نبیین پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر، یہ ذکر ہے۔ وہ تو اور یہ تھوڑی ہے کہ نبی کے ساتھ میں فاضل بریلوی پہ آپ لاکھوں سلام بھیجو۔ نہیں، وحسن اولئک رفیقا، اور جو ان کے سچے ساتھی ہیں۔
सही बात है। लेकिन 1400 साल से जो सलात और सलाम पढ़ा आ रहा है, क्या कभी आपने सुना कि इमाम रब्बानी पर लोगों ने नबी के साथ सलाम भेजा हो, या हजरत ख्वाजा गरीब नवाज पर नबी के साथ सलाम भेजा हो, या हजरत अलाउद्दीन साबिर कलियरी पर नबी के साथ सलाम भेजा हो? कोई आप दलील दो मुझे कि मैं भी मानूं कि हाँ पहले के लोग भी नबी के साथ साबिर कलियरी पे भी सलाम भेजते। आला हजरत ने एक ये सलाम थोड़ी लिखा कि आप मुझ पे सलाम भेजो, आपने तो एक कह दिया कि शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। हाँ, सारी उम्मत में देवबंदी भी आ गए, सारी उम्मत में देवबंदी भी आ गए, नजमी भी आ गए। कोई नहीं है, सही बात है, सारी उम्मत में पकड़ कोई नहीं है। सही है, सारी उम्मत में तो 73 फिरके होंगे, सारी उम्मत पे लाखों सलाम भेजा है उन्होंने, सारी उम्मत पे, यानी सारी उम्मत में देवबंदी भी हैं, नजवी भी हैं, बरेलवी भी हैं। नहीं, वो तो बात सही है, देवबंदी भी हैं, बरेलवी भी हैं, लेकिन जैसे ये जो मेरे सामने किताबें आई हैं, ठीक है, इस्माइल देहलवी साहब की हैं या मौलवी गलतियां हैं, पर भी मानते हैं गलतियां हो गई हैं, इंसान है, तो अब जब वो गलतियां हो गई हैं उनको कुछ सुधार हो जाए या कुछ, वो किताबें आमतौर से कोई भी नहीं पढ़ता। आप हरदोई में पूरे देवबंदी है, 99-98% नहीं तो 95% तो देवबंदी है हरदोई में। हरदोई में अगर 50 मस्जिदें हैं तो 2 मस्जिदें बरेलवियों की होंगी कुल। नहीं, शहर में एक मस्जिद देवबंदी बरेलवियों की नहीं है, एक भी नहीं है। शहर के अंदर बरेलवियों की मस्जिद एक को नहीं है, कुर्बो जवार में बरेलवी ज्यादा है। और यानी शहर में एक भी नहीं है हरदोई में? नहीं, शहर में एक भी नहीं है। तो उसकी वजह यह है ना कि शेख अबराउल हक साहब हरदोई वाले जो थे वो हजरत थानवी साहब के खलीफा थे, उन्होंने सुन्नत पे अमल किया भी, करवाया भी। तो अब मैं यही तो कहता हूँ, बात ये है, आप वही बात मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे थानवी साहब के वो खलीफा थे, यहाँ तक तो बात सही है, और खलीफा थे, लेकिन थानवी साहब की जो किताबों में गलतियां हैं उस पर वो नहीं, वो मैं बताना जो चाह रहा था वो ये चाह रहा था कि हरदोई में आपने कहा एक भी मस्जिद बरेलवी की नहीं है, तो पूरे नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ देवबंदियों की जितनी मस्जिद सब हो, अब मैं ज्यादा से ज्यादा 15,000 की आबादी तो मान लो मुसलमान होंगे, 20 मान लो, हरदोई शहर के अंदर नहीं है, बहुत कम, तो 10 मान लो, हाँ इसी होंगे, 10,000 तो जिला है ना, 10,000 मान लो। अब मैं आपको 10,000 में से सिर्फ इतना कह रहा हूँ, 10,000 की आबादी में से सिर्फ 50 किताबें आप मुझे ला के दे देना, तक़रीतुल ईमान, सिरात मुस्तकीम, हिफ्जुल ईमान, 50 किताबें बस, तो मैं आपका गुलाम बन जाऊंगा, और किराया भाड़ा भी मैं आपको दे दूंगा पूरा, कि साहब ये हर दो में 50 किताबें तो खैर हैं, किताबें तो कुर्बो जवारी मिल जाती हैं, ये तो किताबें तो जैसे 10,000 की आबादी है तो पूरी आबादी में 2 किताबें मिलेंगी, कहीं 5 मिलेंगी, 10 मिलेंगी, वो नहीं, जैसे कि अबरारुल हक साहब की जो आप बात कर रहे हैं, वो अशरफ अली थानवी साहब के खलीफा थे, और जो वो उनका अकीदा था वही इनका अकीदा था। नहीं, ठीक है, आवाम की नहीं, हजरत एक मिनट, बात आवाम की नहीं है, मतलब जो उनका अकीदा था, उनका अकीदा तो कुफरिया, मतलब हर तरीके से साबित है, इसमें तो कोई धोखा का मामला है। कैसा कुफरिया अकीदा? जैसे कि अल्लाह के नबी को जो शैतान से मामला दिया गया है, ठीक है, दिया गया साहब, वो तो गलती हो गई है, मिसाल देने में हुई है गलती। अरे गलती हो गई तो उसकी तौबा भी तो आना चाहिए। तौबा हकीर थानवी साहब की तौबा छपी है, मैं आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी तो भेज दूंगा, तौबा भी छपी है, रुजू भी छपा है, और ये भी कहा है कि जो फाजिल बरेलवी मतलब समझ रहे हैं मेरे बारे में, गुस्ताखी निकाल रहे हैं, कहा कि मैं भी ऐसे शख्स को काफिर मानता हूँ जिस हिसाब से फाजिल बरेलवी मुझे काफिर कह रहे हैं। कहा मगर मेरी ये नियत गुस्ताखी की नहीं है उनसे, इसमें फाजिल बरेलवी की तो कोई गलती ही नहीं है। हाँ, वो तो देखो, जब वो इकरार कर रहे हैं इस बात का, जिसने कुफ्र का इकरार कर लिया वो तो काफिर हो ही गया। अब देखो, मैं कह रहा हूँ कि कुफ्र का इकरार नहीं किया, उन्होंने ये कहा कि ये जो नियत इनकी है कि गुस्ताखी है, मेरी वो नियत ही नहीं है, उन्होंने ये कहा। अगर हाँ उन्होंने ये लिखा तो अगर वो नियत नहीं है, जैसे थानवी साहब ने, जैसे थानवी साहब नबी के बारे में ऐसे अल्फाज लिखने की क्या जरूरत नहीं, जैसे थानवी साहब के बड़े भाई ने एक जगह लिखा है, वो मैं नहीं मानता, मैं आपसे कह रहा हूँ, उसे मैं मानता हूँ मनगढ़ंत है, तौहीन है। उनके बड़े भाई ने लिखा है, अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की कब्रों में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं, वो उनके साथ शब्बाशी करते हैं, तो मैं नहीं मानता कि इसको क्यों लिखा है ऐसी बात को। अब वो कहते हैं मानने वाले के साथ वो अंबिया किराम की हयात साबित करने के लिए लिखा है जी। कुछ लोग ऐसे कहते हैं अंबिया किराम की हयात, अरे भाई ऐसी बात क्यों लिख रहा हो कि अंबिया किराम की कब्रों में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं, तो तौहीन है साहब, है कि नहीं, है ना साहब तौहीन?
नहीं, किसके बारे में बता रहे हैं आप? ये किसने लिखा? ये थानवी साहब के बड़े भाई ने लिखा था, मोहम्मद अहमद साहब ने, कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की कब्रों में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं। ये रवायत तो और भी बुजुर्गों की किताबों से मिलती है, इससे मैं बहस नहीं करना चाहता हूँ। नहीं, किसी की किताब में, लेकिन तौहीन है किसी भी किताब, इस पर इजमा नहीं है उम्मत का कि इससे सही करार दिया हो। इसलिए कि नबियों की बीवियों को सहाबा किराम ने नहीं देखा, हमारे नबी की बीवियों को नहीं देखा, तो इसमें कुल अंबिया की बात की गई है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे नबी तक जितनी भी हैं, जितनी भी नबियों की बीवियां हैं जी। तो अब बताओ, तमाम नबियों की बीवियों को बैक वक्त देखने वाला कौन सा बुजुर्ग होगा? जब हमारे सहाबा किराम ने नहीं देखा, हमारे नबी की बीवियों को नहीं देखा, तो तमाम नबियों की बीवियों को देखने वाला ऐसा कौन सा बुजुर्ग है जो एक साथ देख रहा है कि तमाम नबियों की बीवियां उनकी कब्रों में पेश की जाती हैं, वो उनके साथ शब्बाशी। और मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। ये तो बताओ, ये सही लगा कि गलत है आप? कौन सी? यही रिवायत के अंबिया किराम की कब्रों में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं, वो उनके साथ शब्बाशी करते हैं। मैं आलिम तो हूँ नहीं जो मैं इस बात को कह दूं, नहीं, लेकिन और बुजुर्गों ने भी छापा है इस मामले में। बरेलवी ने लिखा है 727 में, अल मलफूज में लिखा है 727 में, जिल्द सोम में आप पढ़ लेना, पहले अल मलफूज में है। उन्होंने नकल तो किया है, लेकिन नकल करने की क्या फाजले बरेलवी की बात जो है, फाजले बरेलवी का दिमाग और हमारा दिमाग उसके आगे कुछ भी नहीं है। मैं उनकी किताबों पे इतना दिमाग लड़ा करके कुछ नहीं कर सकता हूँ। वो तो ठीक है, आप माशाल्लाह काबिल आदमी। इसलिए कि वो बहुत जबरदस्त आलिम दीन, हर मामले में। वो तो सही बात की किताब आपके इल्म का मौजूदा दौर में कोई मामला हम भी मानते हैं, लेकिन हम ये है कि उनकी हर बात को नहीं कह सकता हूँ, इसलिए कि आपकी किताब पढ़ने के बाद ये पता लगता है कि मैं कुछ पढ़ रहा हूँ आज के दौर के। अच्छी बात है। देखो, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने भी लिखी है, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-शानी ने भी किताबें, सबकी किताबें माशाअल्लाह, सब किताबें सबकी माशाअल्लाह। मेरे पास माशाअल्लाह 50,000 सबसे बड़े मुजद्दिद जो है इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-शानी, 1000 साल मुजद्दिद है, उनसे बड़ा कोई मुजद्दिद नहीं हुआ। और यहाँ पर छोटे और बड़े मुजद्दिद की नहीं है, मुजद्दिद है वो मुजद्दिद है, चाहे वो छोटा चाहे बड़ा हो, लाइक सद एहतराम है मेरे लिए। आखिरी मुजद्दिद हुए 14वीं सदी के, वो हैं हज़रत शेख फजल रहमान गंजमुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह, उनके बाद कोई मुजद्दिद नहीं हुआ। मुत्तफ़िक़ा मुजद्दिद नहीं है। देवबंद वाले जैसे मुजद्दिद मानते तो बरेली वाले नहीं मानते, बरेली वाले जैसे मानते तो देवबंद वाले नहीं मानते। अब बरेलवी देवबंदी जिसे मानते हैं वो शेख फजल रहमान गंजमुरादाबादी की है। मैं देवबंद वालों से मेरी जब मैंने उनकी भी मेरे पास कई किताबें मौजूद हैं, जब उनके मामलात मुझे समझ में ही नहीं आते तो मुझसे तबसरा क्यों करूं? नहीं, ठीक है, वो तो आपकी अच्छी बात है, लेकिन शेख फजल रहमान साहब के आप हरदोई के हरदोई से करीब में ही तो है गंजमुरादाबाद। कभी आप वहाँ जाकर फातिहा पढ़ के मालूमात करें, मुराकबा करके हजरत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं गंजमुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह को बहुत मानता हूँ। वो मुजद्दिद है, वो थे आखिरी मुजद्दिद हिंदुस्तान में, उनके बाद कोई मुजद्दिद नहीं हुआ, उनके बाद कोई मुजद्दिद नहीं हुआ हिंदुस्तान में। मैं आपको बात मानता हूँ, मुजद्दिद वो होंगे, लेकिन मैंने ऐसा कहीं पढ़ा नहीं है। लेकिन मुजद्दिद होंगे, मुजद्दिद तो मतलब सारा हिंदुस्तान मानता है, ये बात तो माननी पड़ेगी आपको। नहीं, मुजद्दिद थे हजरत को तो मुजद्दिद सारा, अरे वो शेख फजल रहमान मुजद्दिद थे, वही मुजद्दिद थे, वो जामेउल मुजद्दिदीन थे, दोनों मुजद्दिदों को जमा करने वाले, एक इधर के मुजद्दिद। मैं उनको मानता हूँ, मुजद्दिद भी मानता हूँ, सब कुछ उन्हें मानता हूँ, वो मेरे लायके सद एहतराम है। हाँ, कभी लेकिन बात मैं आपके बयान से ये कह रहा हूँ कि ये 72 और 73 फिरकों वाली हदीस का आप क्या करेंगे, इसे कहाँ ले जाएंगे? हदीस तो बरहक है, वो तो हदीस है। आप किसी फिरके को मतलब मान नहीं रहे, आप कह रहे हैं कि देवबंदी भी सही है, बरेलवी भी सही है। जिसने फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अदाउस सलात, नाखल्फ नेक लोगों के पीछे ऐसे नाखल्फ लोग आए जिन्होंने नमाजें बर्बाद की, वत्तबाउ शहवात, नफ्सानी ख्वाहिशात में मुब्तला हुए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया फसब यलकौन गय्या, मैं इनको डालूंगा वादी गई में, जिन्होंने नमाजें बर्बाद की। और वादी गई जहन्नम का सबसे निचला तबका है, जिससे जहन्नम भी 1000 बार पनाह मांगता है। अब बेनमाजियों को ये हदीस पढ़ के जन्नती बनाना, शराबियों को जन्नती बनाना, जुआरियों को जन्नती बनाना के 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में, जैसे एक जन्नत में जाने वाला बताते हैं उनमें शराबी हैं, जुआरी हैं, जुमा पढ़ने वाले हैं। बताओ, जुमा पढ़ने वाला कैसे जन्नत में चला जाएगा? जब अल्लाह ने कुरान में फरमाया जिन्होंने नमाजें बर्बाद की मैं उनको जहन्नम के अंदर डालूंगा। अगर उसका ईमान पर खात्मा हुआ तो कुरान में अल्लाह ने फरमाया मैं उनको डालूंगा जहन्नम के अंदर, वादी गई में डालूंगा। अल्लाह तो ये फरमा रहा है नमाजें बर्बाद करने वालों को, और ये नमाजें बर्बाद करने वालों को जन्नती बनाना है। बरेली वाले जिसका खात्मा ईमान पे हुआ है, वो चाहे जुआरी हो, चाहे चोरी हो, चाहे शराब हो, कैसे माने कि खात्मा ईमान पर ही होगा? जो नमाज नहीं पढ़ा उसका कैसे खात्मा ईमान पर होगा?
یہ تو اللہ کی مرضی ہے، چاہے تو ایمان پر خاتمہ عطا فرما، ورنہ مشکل کام ہے جس کا خاتمہ لیکن اللہ کے رسول یہ بھی تو فرماتے ہیں قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ بالکل ہوگا۔ تو اب یہ بریلی والے ان باتوں پر زور کیوں نہیں دیتے؟ صرف ایک حدیث پڑھ کر جہنمی بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ میں آپ سے بریلی اس کی بات نہیں، آپ بریلی بات جس میں ڈال دیتے اس بات گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ خالی بریلی اس کے میں اس کو وہ نہیں کر رہا ہوں، میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ جیسے کہ آپ یہ 72 فرقے ہیں، آپ اس پہ نہ آ کر کے آپ بریلی بھاگ جاتے بار بار۔ 72 فرقے جو آپ بتا رہے ہیں جہنم میں جائیں گے، تو حدیث میں حدیث بارے میں بتائیے گا کہ یہ حدیث میں بتا رہا ہوں ابھی آپ کو۔ علی گڑھ یونیورسٹی میں آپ نے نام سنا ہوگا، معلوم ہے آپ کو کہ جی میرا وہاں لڑکا پڑھ رہا ہے۔ ہاں تو فتاوی رضیہ صاحب 32 کافر امامت کر رہے ہیں وہاں پر، معلوم ہے آپ کو؟ 32 غیر مسلم امام ہو گئے علی گڑھ یونیورسٹی میں۔ 32 غیر مسلم امام ہو گئے؟ ہاں، مسجدوں میں۔ آپ خبر تو لو، آپ لڑکے سے وہ بتا گا، اس کو خبر ہوگی، کہہ دے گا ہاں بے شک ایسا ہو رہا ہے۔ بھیا اس بارے میں مجھے نالج نہیں ہے، میں بتا سکتا ہوں۔ کافر میں نماز پڑھتا ہوں البرکات میں مسجد ہے، وہ تو سید امین ملت صاحب نے بنوایا، ہماری خانقاہ نے بہت وہاں پہ کام کیا ہے۔ لیکن وہ 32 کافر جو امام ہیں علی گڑھ یونیورسٹی میں، آپ کیا کرو گے بتاؤ؟ کیسے نکلواؤ گے؟ 32 کافر امام ہیں یونیورسٹی میں؟ ہاں، یونیورسٹی کی مسجدوں میں 32 کافر امام، یہ تو میں آپ کے منہ سے سن رہا ہوں۔ تو آپ نہیں مانتے 32 کافر امام ہو سکتے؟ کافر امام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہی تو دیوبندی امامت کر رہے ہیں وہاں پر یونیورسٹی کی۔ یہ تو بات آپ بعد میں بتا رہے ہیں۔ اگر آپ امام کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ بھی مسلمان مان لو، آپ بھی مسلمان مان لو دیوبند والوں کو۔ اگر اس امام کا یہ عقیدہ ہے نہیں، اب اگر مگر کیوں لگا رہا ہو؟ اب اگر مگر کیوں لگا رہا ہو؟ وہ تو پورے کے پورے وہی عقیدے کے ہیں جہاں جن کو آپ کافر کہو گے، بریلی والے جن کو کافر کہتے ہیں۔ تو میں نے اسی لیے کہا 32 کافر امامت کر رہے ہیں یونیورسٹی میں، 32 مسجدیں بتائی گئی ہیں، 32 ہیں۔ اگر وہ اشرف علی تھانوی کے عقیدے پر ہیں، وہ سب وہی ہیں، تھانوی صاحب کو مانتے ہیں، وہ تو کافر ہے، اسے کون روک سکتا ہے؟ یعنی پوری یونیورسٹی میں کافر امامت کر رہے ہیں نا؟ اگر اس عقیدے کے ہیں، میں چل کے بتاؤں گا، میں ملا دوں گا آپ کو، میں ملا دوں گا۔ پھر یہ یونیورسٹی میں پڑھنے کیوں آ رہے ہیں بریلوی لوگ؟ آپ کا لڑکا بھی پڑھ رہا ہے، آپ کہہ رہا ہوں۔ بالکل، پڑھنے سے کون کسے روک لے گا؟ گوشت تو کھاتا ہوگا نا، گوشت بھی وہی سب ذبح کرتے دیوبندی وہاں پر علی گڑھ میں۔ علی گڑھ میں تو زیادہ تر دیوبندی ہیں، 90%۔ ذبح جو اللہ کے نام پہ کیا جائے گا وہ تو جائز ہے۔ یہ بریلی والے کہتے ہیں حرام ہے، دیوبند والا ذبح حرام ہے، کیا اللہ کے نام پہ کیا جائے؟ دیوبند والے سے مطلب بریلی والوں کا فتویٰ ہے کہ اگر دیوبند والا ذبح کرے تو بھی دیوبند والوں کا ذبح بریلی والے حرام بتاتے کہ حرام ہے، ان کا ذبیحہ نہیں کھا سکتے۔ میں نے آپ سے ایک بات کہی ہے کہ دیوبندی وہابی نام سے نہیں، اگر اس کا عقیدہ یہ ہے جو اشرف علی تھانوی کا تھا، وہ کسی مسلک کا ہو۔ ارے صاحب، یہ غلطیاں ہوئی ہیں انسان سے، لیکن تھانوی صاحب کا کوئی عقیدہ نہیں تھا کہ اللہ کے رسول نہیں، نبی کے بارے میں آخری نبی نہیں ہے۔ تھانوی صاحب کا بھی یہی عقیدہ تھا، اللہ کے رسول آخری نبی ہے۔ نبی کے معاملے میں اللہ کے رسول حیات النبی ہے۔ دیکھو تھانوی صاحب نے کبھی اپنے بال کو بال مبارک کے نہیں بٹوایا، تھانوی صاحب نے کبھی لبیک یا تھانوی کے نعرے نہیں لگوائے، تھانوی صاحب نے کبھی اپنا میلاد نامہ نہیں پڑھوایا، نہ اپنے بال کو بال مبارک کہہ کے بٹوایا تھانوی صاحب نے اپنے بال کو بال مبارک کہہ کر۔ یہ الیاس قاضی نے بٹوایا، پاکستان والے نے۔ اس کو آپ مسلمان والوں کے سوچو گے یار، اپنی پارٹی کا مسلمان ہے، نبی کو نہیں مانا، جب اس نے نبی کو نہیں مانا تو بال کو بال مبارک کہہ کے بٹوا دیا، نبی کی برابری کر رہا ہے الیاس قاضی۔ اور کسے کہو گے آپ؟ میں الیاس کو نہیں مانتا ہوں، میں الیاس کو نہیں مانتا ہوں۔ وہی تو جو اس نے کتنی بڑی بڑی گستاخیاں کی ہیں صاحب۔ یہ بھی خواب دکھایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں دعوت اسلامی کو بھی نہیں مانتا ہوں، نہ الیاس کو مانتا ہوں، نہ الیاس کی مانتا ہوں۔ یہ بہت اچھی بات ہے، آپ سے بہت مل کر، آپ سے بات کر کے خوشی ہو رہی ہے کہ میں ڈاکٹر امین ملت کا مرید ہوں۔ ارے سید امین ملت صاحب مارہروی رحمت اللہ علیہ، جی میں انہی کے موقف پر قائم ہوں۔ سید امین ملت مارہروی رحمت اللہ علیہ چمکتے ہوئے وہ ہیں، ستارے ایک طرح سے۔ جی اور ان کے بھی بریلی والے خلاف تھے، مجھے معلوم ہے۔ میں جامعہ حبیبیہ الہ آباد میں تھا جب سیمینار ہوا، تو ایک نے کہا نادر اشرف صاحب نے کہ اظہری میاں مارزہ شریف نہیں جاتے، بات پبلک میں آ رہی ہے، کیوں نہیں جاتے؟ تو ان کا بیٹا کھڑا ہوا، مولانا افضل خان صاحب کھڑے ہوئے، کہا نادر اشرف صاحب یہ بات آپ کو نہیں کہنا تھی، اب آپ یہ ذمہ داری لو کہ مارزہ میں بدایوں کے عالم نہیں آئیں گے، اگر وہ نہیں آئیں گے تو ہم اپنے والد کو لے کر مارزہ آئیں گے۔
ये कौन सी बात हुई कि बदायूं वालों को धक्का दिया जाए? उलामा उशैदुल हक साहब आते थे ना बदायूं वाले मारेला में। आप जानते होंगे, लेकिन मैं उर्से कासमी में हर साल जाता हूँ, मेरे सामने ऐसा कोई बयान नहीं आया है। नहीं, वहाँ जामिया हबीबिया इलाहाबाद में जामिया हबीबिया की तरफ से सेमिनार हुआ था, उसमें बात आई थी। जो बात मैं नहीं जानता हूँ, जो बात मैंने देखी नहीं है, नहीं जानता हूँ, उसमें हाँ कैसे कर दूं? नहीं तो मैंने आज भी मेरे पास सैयद अफजल मियां साहब का इंतकाल हुआ, मालूम है आपको? जी जी। तो उसमें क्या मौलाना अफजल साहब आए थे मारेला? भाई इतनी लंबी भीड़ में कौन किसे देखेगा? नहीं आए, वो आए थे अब्दुल सुभान दादा साहब आए थे, वो नहीं आए। और मैंने बरेली के स्टेजों पे ये इख्तिलाफात चले आ रहे हैं बहुत पहले से। बरेली के स्टेजों पे अमीन मियां का नाम आता है, दुआएं भी की जाती हैं। वो तो हजरत जाते हैं तो उनके लिए तो खुला रहता पूरा स्टेज, समझ लो कि इंटर कॉलेज में आप तशरीफ ले आते हैं। और डॉक्टर सैयद अमीन मिल्लत साहब के छोटे भाई जो थे सैयद अफजल मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो हमारे भोपाल में ही रहे हैं। आइए सबसे भोपाल में सब देवबंदी है 99%। तो वो क्या है, काफी टाइम यहाँ रहे, भोपाल में रहे, तो देखो मिलना तो पड़ेगा ना देवबंद वालों से। अब ये थोड़ी कि वो ड्यूटी करें यहाँ पर मिले नहीं किसी से, ऐसा तो हो नहीं सकता। भोपाल टोटल वही उन्हीं लोगों का था जी। तो वो भोपाल में ड्यूटी थी हजरत की, डॉक्टर सैयद अफजल मियां साहब की। हाँ वो खैर अपना जो है वो तो देखो दुआ सलाम करना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। वैसा तो है नहीं कि भोपाल में रहे और फिर लोग मिलने आए तो मिले नहीं, भगा दे तुम। दुआ सलाम के मामले में ये है कि जिसका अकीदा मुझे मालूम है कि इसका अकीदा काफी कुफरिया है, उससे दुआ नहीं करेंगे। इसका नहीं मालूम तो हम भी काफिर मानते हैं, जिसका अकीदा कुफरिया हो, शिरकिया हो, तो हम भी काफिर मानते हैं। लेकिन जब क्लियर हो जाए बात। जी। और एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हजरत ने काफिर नहीं कहा तो देवबंदियों को आप कैसे काफिर कह रहे हो? जब यजीद ने इतने जुल्म कराए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर, शहीद करवाया, आला हजरत उनके बारे में नरम गोशा रखते हैं कि हम उसे काफिर नहीं कहेंगे। अरे भाई उन्हें तो तुम काफिर नहीं कह रहे हो, देवबंद वालों को एकदम कह रहे हो। कुर्रे अर्द पे कोई देवबंदी खाली नहीं जो कुफ्र से खाली हो। कुर्रे अर्द पर कोई ऐसा देवबंदी नहीं जो कुफ्र से खाली हो। देवबंद वालों को तो एकदम काफिर कह रहे हो, यजीद को काफिर नहीं कह रहे आप। हम्बल का क्या फतवा है? काफिर होने का है। हाँ, तो मैं यहाँ पर उनका फतवा मान लेता हूँ। हाँ बिल्कुल, आप तो माशाल्लाह काबिल आदमी है और आप शख्सियत है अपने वक्त की। और हजरत अबू तालिब को आप क्या मानते हैं? मारहला शरीफ वालों का क्या अकीदा हजरत अबू तालिब के बारे में मालूम होगा आपको। सैयद आले रसूल साहब क्या मानते थे? हुजूर अमीन मिल्लत का हजरत अबू तालिब के बारे में ये अकीदा, ये मौक़िफ़ है कि उनके बारे में किसी बयान में मजम्मत ना की जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, उनका अकीदा सही है, बिल्कुल मीडियम अकीदा। बाकी ये तो मना किया गया हदीसों में, लेकिन जो हदीसें उनके उसमें हैं कि उनका खात्मा ईमान पर नहीं हुआ है, उस मामले को बयान नहीं किया जाता है। हाँ बस ये है कि मीडियम अकीदा रखा जाए, जो वो भी ठीक है। लेकिन बाद लोग मुसलमान मानते हैं, जैसे अल्लामा ताहिरुल काजी साहब मुसलमान जाहिर करते हैं। अल्लामा ताहिरुल मुझे उनके मानने से मुझे उनसे मानने, मेरे पास जब किताबुल्लाह और किताब हदीस मौजूद है तो जिस पर ये वाज़ी दलील है तो मैं उससे किसी उलमा की वो थोड़ी करूंगा। वो तो अल्लाह के रसूल के वालिदैन के बारे में भी, जहाँ पे मसले को हम देख नहीं पाते। नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के बारे में भी इख्तिलाफ है, लेकिन अक्सर लोग मुसलमान ही मानते हैं। और अल्लामा मुल्ला अली काई रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी है अदम जवाब के बारे में, अदम ईमान के बारे में। मैं उन्हें मोमिन मानता हूँ। हाँ हम भी मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत अब्दुल्ला, हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं हम तो, इसलिए मोमिन मानता हूँ। हम इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कहते हैं, इसलिए कि बुखारी शरीफ में लिखा, गौसे पाक ने कुनियतुत तालिबीन में लिखा अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। बिल्कुल, इसमें कहने में कोई गलती थोड़ी ना है, इसमें क्या वजह है? अलैहिस्सलाम कह सकते हैं, सलामती का मामला तो है, और क्या है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सैयदा फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम, कितना बड़ा मर्तबा है साहब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे उनके मर्तबा मामले क्या है? अरे साहब अब आप तो सारे मसले खत्म हो जाते हैं। अरे इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कहेंगे तो सवाब मिलेगा, है क्या नहीं साहब? गौसे पाक ने लिखा है, शाह अब्दुल अजीज साहब ने लिखा है, बड़े बड़े इमामों ने अलैहिस्सलाम लिखा है, वो भी जानते थे। अलैहिस्सलाम कहने में किसी को दिक्कत भी नहीं है भाई, इसमें होना भी नहीं चाहिए साहब, क्या ख्याल है? इसमें क्या दिक्कत है? होना भी नहीं चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूँ होना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं। आप तो अपने पीरो मुर्शिद से कहकर, आप मेरी आपसे गुजारिश है कि एक जलसा ऐसा रखवाएं मालेला में, जश्न इमाम बाकर, जश्न इमाम जाफर, कि हजरत ये इस नाम से हिंदुस्तान में कभी जलसे नहीं हुए और आप उस खानदान के हैं, तो अब आप मालेला से शुरू करेंगे तो पूरे हिंदुस्तान में ये जलसे होंगे, ताकि इनकी शान मालूम हो कि इमाम बाकर कौन है, जिनका इल्म देखकर इमाम आदम हैरान हो गए थे कि मैं 2 साल अगर उनकी खिदमत में न रहा होता तो मैं बर्बाद हो जाता। इंशाअल्लाह मेरे यहाँ हरदोई में हर 6 मुहर्रम को जश्न शहीद आजम बस अली अकबर कॉन्फ्रेंस होती है।
हर साल सालाना 7 मुहर्रमुल हराम अच्छी है, लेकिन जश्न इमाम बाकर भी, जश्न इमाम जाफर भी, इन नामों से भी। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो उनके जश्न इमाम सबके चाहने मूसा वाले, काजिम उनके भी। मानने वाले हैं। और आलिमों से कहो कि इनके अलावा आप इधर उधर नहीं जाओगे, सीधे सीधे इनकी शान बयान करो, इमाम अली रजा कौन है, इमाम मूसा काजिम कौन है। हमारा चैनल जो है वो हजरत इमाम अली रजा के नाम पर चलता है। इमाम अली रजा को हम लोग तहे दिल से मानते हैं, अहले सुन्नत वल जमात हैं, किस लिए? तो हमारा चैनल उन्हीं के नाम पर है, हजरत के नाम पर है। लेकिन आपके चैनल पे जो आपके थर्मल लगा हुआ होता है उससे मुझे एतराज है। थर्मल मरमल आप बता दो तो इंशाल्लाह सही करवा लेंगे उसको, जो भी होगा इंशाल्लाह। बात ये है कि आप उसमें जिससे भी तबसरा करते हैं, जिससे भी बात करते हैं, वो चाहे अनपढ़ हो कुछ भी, आप उसे मुजद्दिद लिख देते हैं, आप उसे कुतुब लिख देते हैं, आप उसे क्या क्या लिखते हैं। तो हर आदमी इंसान मुजद्दिद नहीं हो जाएगा, हर कोई कुतुब नहीं हो जाएगा। ये आपकी बात सही है, नसीहत आपकी बहुत अच्छी है, इससे मैं इंशाल्लाह ताला सबक हासिल करूंगा। मुझसे बात कर रहे हैं, मैं ना हाफिज हूँ ना आलिम हूँ, आप मुझे कुतुब लिख दें, आप मुझे फला फला लिख दें, तो ये मामला तो गलत हैं। ये भी तो सही बहुत बड़े ये सही बात है, लेकिन वो आजकल जो हर किसी को देना बहुत गलत बात है ना। नहीं, आजकल कोई भी आदमी पीर मरता है तो लोग उसको कुतुब लिख देते हैं, कुछ भी नहीं हो कुतुब लिख देते हैं। नहीं नहीं, लिखने से कुछ नहीं होता है, उसके अमल से, उसके इल्म से, उसके तकवे से, उसके फतवे से सब साबित होता है। अब हजरत सैयद, लिखने से क्या होता है? अब हजरत सैयद नजीब मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत सैयद नजीब मियाँ लिखिए, नजमी मियाँ लिखिए रहमतुल्लाह अलैह ना, हजरत सैयद नजीब मियाँ रहमतुल्लाह अलैह। अरे नजीब हैदर तो हयात है भाई। मैं कब कह रहा हूँ मर गए जी, आप रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो जैसे आपका ख्याल वही गया ना कि इंतकाल होने वाले को रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है, इसी तरह जब कोई गैर साहबा को रज़ियल्लाहु अन्हु कहेगा तो आम आदमी का ध्यान ऐसे ही पहुंचता है जैसा आदमी आपका पहुंचा ना कि उनका अभी जिंदा है। मैं कह रहा हूँ कि हाँ बिल्कुल नहीं मानता हूँ जिंदा है। तो जब गैर साहबा का आदमी नाम सुनता है, फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु अन्हु मुफ्तियात, तो आदमी सोचता है यार ये साहबी थोड़ी है। रज़ियल्लाहु अन्हु का मतलब क्या, माना क्या है? तो वो उसी तरफ जहन जैसा भी आपका जहन गया ना रहमतुल्लाह अलैह सुन के। नहीं गलत, तो क्या नजीब मियाँ को रहमतुल्लाह अलैह नहीं कह सकते? तो क्या नजीब मियाँ को रहमतुल्लाह अलैह नहीं कह सकते? आप तो मरे जिंदा को एक कर रही है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो ऐसी सहाबा को रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं कह सकते? सहाबा को रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिल्कुल कह, उन्हीं के साथ लगता है, उन्हीं कहना चाहिए। लेकिन अगर किसी वली के साथ गैर सहाबा को रहमतुल्लाह अलैह कहा जाए, औलिया किराम को रहमतुल्लाह अलैह, आम मुसलमानों को मरहूम कहा जाए, कह सकते हैं। जैसे मैं हजरत नजीब मियाँ को रहमतुल्लाह अलैह कह सकता हूँ, लेकिन कहूंगा तो जैसे भी आपका मिजाज, वो हयात है, आप वो तो हयात की सही बात है, लेकिन आदमी का जहन वहीं जाता है दुनिया से जाने पर। तो इसी तरह से मैं कह तो सकता हूँ रहमतुल्लाह अलैह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह अलैह हम कहते हैं। ये प्रोपगंडा है, ये बात दीन की नहीं ना शरीयत की बात है। नहीं, इसी तरह गैर साहबा को जब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं तो गैर साहबा को मसला लिखा है कि कहना जायज है, लेकिन कहा नहीं जाएगा कि आदमी का जहन मुंतशिर हो जाएगा। जैसे अभी आपका जहन मुंतशिर हुआ कि नजीब मियाँ तो अभी जिंदा है, आप रहमतुल्लाह अलैह कह रहा हूँ, है कि नहीं? आप ये मंतिक उसे समझाइएगा, मतलब जिसमें कुछ किताबें ना, कुछ तो किताबें आप ही समझो। आप अल्लामा नकली खान रहमतुल्लाह की किताब पढ़ो तो वो भी रहमतुल्लाह लिखते हैं, इमाम रब्बानी की पढ़ो वो भी बड़े बड़े वलियों को रहमतुल्लाह लिखते हैं, गौसे पाक की पढ़ो वो भी रहमतुल्लाह कहते हैं। नहीं, रहमतुल्लाह नवाज को रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, रहमतुल्लाह अलैह ही कहा जाए, इसलिए कि साहबा की पहचान है, पहचान है, मरहूम आम मुसलमानों की पहचान कोई नहीं है। नहीं, मरहूम आम मुसलमानों की पहचान है, और रहमतुल्लाह अलैह वलियों की पहचान है, रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबा की पहचान है, अलैहिस्सलाम फरिश्तों नबियों की पहचान है। फिर आप इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम क्यों कहते? वो उसे मुस्तस्ना करार दिया गया है, उसको उस हुक्म से मुस्तस्ना करार दिया गया है। यही मामला है कि अलैहिस्सलाम को उस हुक्म से मुस्तस्ना मैं नहीं कर रहा, मैं तो मामूली आदमी हूँ। इमाम बुखारी ने अलैहिस्सलाम लिखा है, गौसे पाक ने अलैहिस्सलाम लिखा है। ये यही सवाल आपका फिर वहाँ पहुँच जाएगा इमाम बुखारी पर और गौसे पाक पर। इसमें शरई गिरफ्त नहीं है, चाहे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसी वली को हम कह दें, चाहे सहाबा को कहें, शरई गिरफ्त कुछ भी नहीं है। आप अपने दिमाग से, आप अपनी मतलब मंतिक के कह दें वो अलग बात है। तो बस तो नजीब मियाँ को हम रहमतुल्लाह अलैह कहें तो शरई क्या गिरफ्त है? क्यों नहीं गिरफ्त है? बताओ ना आप, क्या गिरफ्त है? क्यों नहीं गिरफ्त है? मैं दुआई तो दे रहा हूँ, अल्लाह की रहमत हो उन पर। अल्लाह की रहमत आप दुआ कह दे रहे हैं, लेकिन आप उधर बात कर रहे हैं दोनों जो कि दुनिया से जिनकी रुखसती हो चुकी है, इधर आप बात करें जो दुनिया पे हयात है। नहीं, ये आपका ट्राफिक कुछ बनता ही नहीं है।
नहीं हजरत साहब, थोड़ा बहुत आप समझे बात को। बड़े बड़े वलियों ने रहमतुल्लाह ने लिखा है, तो हम क्यों रज़ियल्लाहु अन्हु लिख रहे हैं गैर साहब? आप नहीं, मैं समझता था कि आप जो है फरोगे दीन के लिए काम करते हैं, लेकिन आप तो फरोगे फिरका के लिए काम करते हैं। हम नहीं, हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। नहीं, आप कहाँ अहले सुन्नत वल जमात है? आपकी बातों सैयद से लग रहा याह्या है मियां रहमतुल्लाह अलैह के घर पे मैं रुका हूँ मारे शरीफ। सैयद याह्या मियां साहब को आप जानते होंगे। आप जाने आने की कुछ नहीं, जाने आने तो काफिर है, मुसलमान के पास मिलने जाता है, इससे क्या मतलब है? हाँ, जाने आने से कुछ नहीं, लेकिन आपकी बातों से ये लग रहा है कि जो है आप दीन का काम नहीं कर रहे। आप मतलब मुझसे आप बात कर रहे हैं कि बरगलाने वाली आप बीच में फांस रहे हैं। फांसने वाली बात मुझे नहीं चाहिए। मैंने आपसे जो बात पूछी थी आप उसका जवाब नहीं कहा कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में काफिर तो इमाम नहीं हो सकता है। फिर मैं क्या देवबंदी इमामत कर रहे हैं? तो फिर कहा कि हाँ, मतलब आप भी देवबंदी को मुसलमान मान रहे थे अभी, कि काफिर कैसे इमामत कर लेगा यूनिवर्सिटी में? आपने बाद में मैंने कहा कि 32 मस्जिदें हैं, 32 में देवबंदी इमामत कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, तो वो बरेली के हिसाब से तो काफिर ही है। लेकिन आपने मुसलमान माना देवबंदियों को। और वक्फ बिल का मसला है, इसमें भी आप मुसलमान मानते हो देवबंदियों को कि यार वक्फ देवबंदियों का भी है, शियाओं का भी है, अहले हदीस का भी है, बरेलियों का भी, हम सब मुस्लिम है। तो वो मुसलमान, आप तो मुसलमान मानोगे ना वक्फ के मसले में देवबंदियों को? अकीदा देखेंगे नहीं तो आप यहाँ अकायद की है गवर्नमेंट में। आप देखो जनाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के पास जाकर आप ये नहीं कहोगे कि देवबंदी मुसलमान नहीं है, इनके वक्फ पर आप कब्जा करो, हम भी आपके साथ देंगे। आप होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब से नहीं कह सकते जाके कि देवबंदी मुसलमान नहीं है, आप इनके पे कब्जा करो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। अगर ऐसा कह दोगे तो वो लोग खुश हो जाएंगे, आपको गले लगा लेंगे, लाल बत्ती की गाड़ी दे देंगे, आपको गाड़ी दे देंगे, साहब जाइए कहीं भी जाइए, आप कुछ भी करिए इनके साथ में। आपके ऊपर आपकी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं होगी, FIR भी नहीं होगी, जितना चाहो मारो देवबंदियों को जाके। ये मामले जो आप बात कर रहे हैं ये दीन से रिलेटेड ऐसा मामला नहीं। जाके क्या तो अमित शाह साहब से हम देवबंदियों के साथ नहीं है, मुसलमान नहीं है, आप इनका वक्त कब्जा करो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। एक ताकत बढ़ जाएगी, उन लोगों की हिम्मत भी बढ़ जाएगी, और आपको बॉडीगार्ड भी देंगे, आपको फोर्स भी देंगे, और आपको डंडे भी दे देंगे, जितने चाहो मारो इनको, कोई तुम्हारी रिपोर्ट नहीं, चलो जाओ मारो। ये बात किसी पढ़े लिखे के नहीं, जिस तरीके से आप नहीं, तो फिर आप मुसलमान मानते हो उसको, देवबंद वालों को? जब वक्फ का मसला है मुसलमान मानते हो, मॉब लिंचिंग होगी तो मुसलमान मानते हो, उनकी मस्जिदों पे हमला होगा जब भी आप मुसलमान मानोगे। ये नहीं कहोगे हरदोई की मस्जिद में देवबंदी पे हमला हो रहा है, हम नहीं जा रहे, काफिरों की मस्जिद है। दिल मुसलमान मानता है, जबान काफिर कहती है, दिल कहता है मुसलमान है। जिसे दिल भी काफिर कहे, जैसे वसीम रजवी, उसे दिल भी काफिर मानता है, जबान भी काफिर कहती है। जो वाकई गुस्ताख रसूल होगा उसे दिल भी काफिर मानता है, जबान भी काफिर कहती है, जैसे सलमान रुश्दी है। और गुस्ताख रसूल का अल्लाह दुनिया में जीना हराम कर देता है, उसका जीना हराम हो जाता है। वसीम रजवी का जीना हराम हो गया, मजहब बदल लिया मगर जीना हराम हो चुका है उसका। और जिनका कुफ्र छपा है उनके बारे में क्या कहेंगे? जैसे मोहम्मद रफी ने भी जो कुफरिया गाना गाया है, खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा मेरे महबूब को किसने बनाया, सोचता हुआ। जिनका कुफ्र छपा है आप और अभी हजरत मौलाना उबैदुल्लाह खान आजमी अभी जो खतीब इनकलाब है रदौली में, सबके साथ शरीक नहीं होंगे कॉन्फ्रेंस में? देवबंदी अहले हदीस जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है मुत्तहिदा देखो साहब, अभी अरशद मदनी साहब ने दिल्ली में जलसा किया तो उसमें भी तो सब शरीक हुए ना, सुन्नी देवबंदी सब हुए कि नहीं हुए? वो मजहबी जलसे नहीं है, वो सियासी, वो उससे मामला उसका अलग होता है। वक्फ बिल का मसला मजहब से तो ताल्लुक ही रखता है, उसमें मसाजिद है, मदारिस है, सबका है, वक्त तो सबका है, चाहे देवबंदी हो चाहे बरेलवी हो चाहे कोई हो। मुसलमान मानना पड़ेगा, ये नहीं कहेंगे कि साहब ये मुसलमान नहीं है इनका वक्फ कब्जा करो, ये देवबंदी नहीं है मुसलमान से तौबा नहीं तब तो मुसलमान हम थोड़ी कह देंगे। नहीं, आप मजाक क्यों नहीं कह सकते ये बात को? क्या बात? जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के पास जाके आप क्लियर कर दो ना ये मुसलमान नहीं है देवबंदी है। जो उन्हें मुसलमान मानता होगा वो कहेगा ना, मैं मानता ही नहीं, मैं क्यों कहूँ? नहीं, आप ये मजाक नहीं कह सकते, प्रधानमंत्री के पास जाके नहीं कह सकते। मैं जिसका कुफ्र छपा है मैं उसे क्यों मान लूँ? नहीं, मैं कह रहा हूँ हजरत, वो आप दीगर मामलों कहिए, आप सबकी बात, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, अवाम की बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब जिसका छपा है उसे मैं नहीं मानूंगा। आप अलबरकात जाते हैं, गए? जी बताइए। अलबरकात में क्या कट्टर सुन्नी वहाँ पर पढ़ाने वाले हैं? अगर हम आपको बता दें देवबंदी भी में पढ़ाते हैं अलबरकात में, तो क्या मानोगे आप? आपके बताने से थोड़ी हो जाके साबित करना पड़ेगा। और हम बरेली वाले आलिमों की ज़बानी सुनवा दें वहीं? क्या? हम तो अलीगढ़ में हमारी काफी तकरीरें हुई है ना, तो ये थोड़ी के देवबंदी को उन्होंने मुदर्रिस रख लिया तो साहब उनको सुलह कुल्ली कह दो, वो तो मजबूरी है ना साहब, सबको लेके चलना पड़ेगा, देवबंदियों को भी लेके चलना पड़ेगा। वैसे थोड़ी उठाया मुंह काफिर कह दिया,
हाँ, तो ये सियासी तौर पर सबको ले के चलना पड़ता है, लेकिन दीनी तौर वो पर नहीं। जब अलबरकात का उद्घाटन हुआ था तो शिया को भी शामिल किया गया था उसमें उद्घाटन में, तो इस पर अजहरी मियां को एतराज भी था कि नहीं, जब तो अजहरी मियां आने जाना बंद हो गए थे मारजा शरीफ। अरे ताज शरिया की बात आप ना करें, वो बिल्कुल एक हिमालय इस तरीके से शरीयत पे अडिग हैं, उन्हें तो आप छोड़ें, आप दीगर की बात करें, उनके मामले में तो अजहरी कुछ मियां कहना। आपके पीर से ज्यादा शरीयत पे अमल करते थे कि नहीं? किसके? आपके पीर सैयद अमीन मिल्लत साहब से ज्यादा शरीयत पे अमल करते थे कि नहीं करते थे अजहरी मियां साहब? मैं सबो रोज किसी के साथ, मेरा पीर वो मेरा पीर है। तो आप अपने पीर को मानो, दूसरे की क्यों तारीफ कर रहे हो? आप अपने पीर की तारीफ करो, सैयद अमीन मिल्लत साहब की तारीफ करो। मुझे तो ताज शरीयत, मुझे तो अमीन मिल्लत ने बताया कि ताज शरीयत है। तो फिर राब्ता थोड़ी था, उनका ताल्लुकात खत्म हो गए थे बाद में, पहले था। मेरे पास वीडियो मौजूद है, मेरे पास सब मौजूद है। शुरू में 20 साल पहले की बात है। मामला इल्म है, तकवा है, 20 साल से आना जाना बंद था इंतकाल से पहले, 20 साल हो गए थे। मैं तो खुद आना जाना बंद किया, मैं इस मामले में नहीं करता हूं। उलमा हयात थे ना, जब से मैं जाना आना है मारजाम, जब आसन उलमा हयात थे, मेरी मुलाकात आसन उलमा से बस एक ही बार हमने देखा था, बस सैयद हसन मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह को। ठीक है, कल इंशाअल्लाह इसी टाइम बात होगी। अब मेरे साहब आप थोड़ा जलाल में आ जाते हो। नहीं, जलाल में बिल्कुल नहीं आता हूँ मैं। हालात देखो नाजुक हैं, गैर मुस्लिम हमें मुसलमान समझ रहे हैं और हम आपस में एक दूसरे को काफिर समझ रहे हैं। नहीं, उस बुनियाद पर हम भी सबको सब मानते हैं। नहीं देखो, हम मानते हैं कि गलतियां हुई हैं, हम भी मानते हैं गलतियां हुई हैं, देवबंद वालों से भी हुई है, सुन्नी बरेलियों से भी हुई है, लेकिन अपन कब तक ये गलतियों को बताते रहेंगे पब्लिक को? अब देखो, ये तो मस्जिद नबवी के इमाम को भी मुसलमान नहीं मानते, ये बरेली वाले तो ये कहते हैं मस्जिद नबवी का इमाम भी मुसलमान नहीं। जिसका खात्मा ही कुफ्र पर हो गया, मैं उसकी बात ही क्यों करूं? इससे क्या मतलब मुझे? हजरत मस्जिद नबवी वाले की बात करूँ, मस्जिद नबवी के इमाम को तो आप मुसलमान मानोगे? मस्जिद नबवी के इमाम को? मस्जिद नबवी में इमामत तो यजीद के दौर में किसकी रही थी, आप मुझे बताएं। अभी मौजूदा दौर की बात करूँ, लेटेस्ट। अरे अभी नहीं, आप पीछे बताएं, पीछे क्या उसमें काफिर इमाम नहीं खड़ा हुआ? नहीं, अभी कौन काफिर? आप दौरे करबला में जाइएगा, क्या कब्जा उस पर नहीं हुआ? उस पर इमामत किसने किया? आप उसका उसे मुसलमान कह देंगे? तो यजीद को तो काफिर कहा नहीं आला हजरत ने, फिर आप कैसे काफिर मान रहे हैं? मैं इमाम अहमद बिन हम्बल की हदीस उससे मान रहा हूँ। तो आला हजरत तो काफिर नहीं कहते? आला हजरत मुसलमान भी तो नहीं कहा है। तो मुसलमान नहीं कहा तो काफिर भी नहीं कहा? काफिर भी नहीं कहा तो मुसलमान भी तो नहीं कहा है। शक किया ना, क्या काफिर नहीं कहा, शक किया उन्होंने। वो शक किया, मैं दिल के हालात किसी के नहीं जानता, वो आप जानते होंगे। खुले काफिर के बारे में शक किया, खुला काफिर है यजीद, है कि नहीं? फिर यहाँ पर मैं इमाम अहमद बिन हम्बल की पैरवी करता हूँ, मैं उसे काफिर मानता हूँ। अच्छी बात है, आप काबिल आदमी हो, आप थोड़ा जलाल में कम आया करें। और हालात जलाल आता ही नहीं है, जलाल होता तो जैसे सैयद मारेरा में है, ऐसी सैयद मक्का शरीफ मदीने शरीफ में है। आप उनकी कोई अलग मस्जिद नहीं बता सकते कि ये अलग नमाज पढ़ते हैं, वो सब वहीं पढ़ते हैं जिनको बरेली वाले काफिर के जातियात की बात नहीं करता हूँ। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम भी मारेरा में पैदा नहीं होंगे, न बिलग्राम में होंगे, न मसूली में होंगे, वहीं पैदा होंगे मदीने, आपको मालूम है, वहीं अरब में ही पैदा होंगे हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। और सैयद खानदान में होंगे, उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, वालदा का नाम आमना होगा। उनको भी बरेली वाले मुसलमान नहीं मानते, वहाँ के सैयदों को। वहाँ के सैयदों, फिर वही बारी सैयद खाली सैयद कहने थोड़ी मान लिया जाएगा ना। अरे तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नस्ल तो मौजूद है ना, वहीं तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पैदा होंगे। सैयद तो मतलब तमाम आप शिया तमाम अपने को सैयद कहते हैं, लेकिन इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तो अरब की बात करो, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तो नहीं पैदा होंगे सैयद खानदान में। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को कौन नहीं मानता, किसने इसका इनकार किया? तो क्या इमाम मेहदी मसलक आला हजरत को मानेंगे या मसलक इमाम शाफी को मानेंगे? मसलक आला हजरत क्या है, आप मसलक आला हजरत क्या मानते हैं? क्या इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मानेंगे मसलक आला हजरत? इमाम आजम अबू हनीफा बनाम मसलक आला हजरत। तो मसलक गरीब नवाज, मसलक वही इमाम आजम, मसलक गरीब नवाज भी कह सकते हैं, मसलक को माना, मसलक शेख फजल रहमान भी कह सकते हैं, मसलक मदनी बड़े पीर साहब के मसलक को माना, मसलक आसनुल उलमा भी कह सकते हैं। मतलब को मैं हर बुजुर्गाने दीन का मसलक वही मसलक है, इमाम आजम अबू हनीफा का मसलक है, थोड़ा सा इमाम आजम अबू हनीफा का मसलक वही मसलक है। थोड़ा सा संजीदा मिजाज होकर सोचिए कि यूनिवर्सिटी में 32 काफिर इमामत कर रहे हैं। जब मैंने कहा तो आपने कहा कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, आप सख्ते में आ गए थे ना कि 32 काफिर कहाँ से आ गए? बात करें, मैं खेत पे आ गया हूँ। हजरत 32 काफिर आपने नहीं माना जब मैंने कहा कि देवबंदी